This only happens in stem cutting. इस चीज को हम बोलते हैं stem cutting, जो तुमने पढ़ा हुआ है एक स्टैंडर्ड में पर नहीं याद। ग्राफ्टिंग। ठीक है, नहीं stem cutting जब बोल रहे तो बोलता है ग्राफ्टिंग। Easy? Okay. Next up, the last point for auxin says it induces parthenocarpy. I'm sure that मैंने सिखाया था germination of seed सिखाया था तुमको। Seed structure and germination बताया था। नहीं कहीं नहीं है। So anyways, listen. Do you know that a flower has ovary? After fertilization, pollination होता है, उसके बाद fertilization होता है, and उसके बाद the fate of the ovary is it turns into a fruit. सबको पता है इतना? Ovary बनता है fruit, ovule बनता है seed, सबको पता है, right? But if the fruit is forming without fertilization, then it is happening, and this process is called as parthenocarpy. So there are some fruit which are called as false fruit. For example, pear पता है? पेयर खाते हैं ना? तो फ्रूट क्या होना चाहिए? ओवरी मैंने अभी बोला ना, बट जो पेयर है ना वो ओवरी से नहीं होता, वो थैलामस होता है ना, फ्लावर का जो थैलामस होता है ना वो एक्सपैंड होकर पेयर बनता है। So it does not require fertilization. That means, so if fertilization is not required but the fruit is formed, बहुत elaborate process है, but this is called as parthenocarpy. So what is given to you? It's given to you as it induces parthenocarpy. Induces fruit formation. Induces fruit formation or and that is called as parthenocarpy. ऐसा कुछ है? Induces का मतलब होता है it starts. Induces का मतलब होता है start. इसकी जगह तुम initiates भी लिख सकते हो, चलेगा। बट इतना याद रखो कि पार्थिनोकार्पी या फ्रूट फॉर्मेशन को सपोर्ट या इनिशिएट या स्टार्टर कौन देता है? ऑक्सीन। Have you done? Are three examples given to you about parthenocarpy? या parthenocarpic fruits rather? Apple, tomatoes and bananas. है ना? These are the three fruits which are formed by parthenocarpy. तो इस fruit को क्या बोलते हैं हम? Parthenocarpic. Now only in bio this is required. बाहर जाके कोई parthenocarpic fruit के बारे में पूछना मत, सबको नहीं पता होता ये. But it's very simple that the fruit which is made up of this kind of process we call it as parthenocarpic fruit. Skim through auxin very quickly in a minute. Auxin देखो पैराग्राफ, उसके functions देखो, quick done. बाकी सबको टाइम नहीं लगेगा अभी. अगर तुमको इतना आ गया है तो बाकी सब फटाफट होना चाहिए. And make sure you are attentive in this lecture. I'll give you a tip. अगर ये लेक्चर में तुमको पूरा वो आ गया ना जितना हम पढ़ रहे हैं, तो तुम जब रिविजन करोगे you just have to look onto that table that's given to you. That table has kind of everything. But तुमको पता होना चाहिए क्योंकि उस टेबल में डायरेक्ट लिखा होगा पार्थिनोकार्पी. अब तुमको अगर वही याद नहीं है कि पार्थिनोकार्पी क्या था, फिर तुमको वापस जाकर पढ़ना पड़ेगा क्या. Easy. Can we go to gibberellins? Gibberellins are again like the side hero नहीं बोल सकते उसको, इसके बाद वाला ये तो बेहद इम्पोर्टेंट है. बट जिब्रेलिन इज एन अम्ब्रेला टर्म, तो जिस हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इट इज कॉल्ड एज जिब्रेलिक एसिड. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो माय डियरीज? डोंट बिहेव लाइक डेड बॉडी सिटिंग हियर फोर्सफुली. जिब्रेलिन का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड. नो आई एम कमिंग टू इट. Gibberellin will come under this. The first three hormones will come under this. The last two are coming under that. Okay? So जब में ऑक्सीन लिखा हुआ है, जिब्रेलिन लिखा हुआ है, साइटोकाइनिन लिखा हुआ है, उधर लिख दो GP. GP stands for growth promoter. Okay? और जो दो है उसके बाद में लिख दो GI. That means growth inhibitor. बेशक कि तुमको पता होना चाहिए कि GP का फुल फॉर्म क्या है, नहीं तो बाद में पूछेंगे GP क्या लिखा है. शाबाश. APGP सिखा दी. आपको आता ही What do you think? आपको मैथ्स नहीं आता? हाँ. ओके. हाँ ना, मैंने भी पढ़ा हुआ है ना, ऐसे थोड़ी किया. आज क्या पढ़ा? Gibberellic acid. Gibberellic acid is the form that it is discovered. मेरा भी आ रहा. What did I say previously? Previous to it. Gibberellin is the umbrella term. Gibberellic acid is how it is derived and extracted. There are 9 types of gibberellins, but however it goes on as GA1, GA2, GA3 and so on. GA stands for gibberellic acid. GA1 का मतलब होता है gibberellic acid 1.
gibberellic acid 2, gibberellic acid 3 and so on. Out of this, the most abundant and the most studied one is GA3. पक्का आएगा अगर इसका इंडिविजुअल टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन आएगा GA3. Okay, GA3 or that gibberellic acid, however, comes into growth promoter because it also promotes growth. And how does it promote growth? By cell elongation. ठीक है, तुम ऐसे बोल दोगे कि ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, पर कैसे कर रहा है? वो सेल एलोंगेट कर रहा है. और कौन से सेल एलोंगेट कर रहा है? जो भी मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स बन रहे हैं, सारे के सारे सेल्स एलोंगेट करने में पड़ा हुआ है. ओके, नेक्स्ट अप देयर आर फंक्शंस गिवन अबाउट जिब्रेलिक एसिड. द फर्स्ट वन सेज इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनोड? हम दो नोड्स के बीच में. अब दो नोड क्या होता है? वो जो बैम्बू प्लांट में ऐसा बैम्बू प्लांट में छोटा एवरी छोटा प्लांट हैज लाइंस. ऐसा छोटे छोटे लाइंस होता है. उस लाइन को बोलते हैं नोड. दो नोड के बीच में जो जगह है उसको बोलेंगे इंटरनोड. रिमेंबर दिस. डू यू सी दिस लाइन? ये नोड है, ये दूसरा नोड है. दो नोड के बीच में जो जगह है ये इंटरनोड. नाउ जस्ट इमेजिन इफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, the cells at this particular place starts elongating, then eventually the length of the finger will also increase. Same happens in the plant as well. बैम्बू और शुगर केन का एग्जांपल मैं इसीलिए देती हूँ ताकि तुमने देखा हुआ है. बैम्बू देखा ना, उसमें दिखेगा नोड. अब सोचो तो टेस्ट बाय पेशेंट टेस्ट रिकॉर्ड. अगर इंटरनोड उसका बढ़ जाएगा तो प्लांट का टॉलनेस बढ़ जाएगा ना. सो इट इज यूज्ड, हाँ ना, तो टॉलनेस बढ़ जाएगा ना उसका. ओके, सो डवार्फ प्लांट अगर होते हैं उनको अगर टॉल प्लांट्स में कन्वर्ट करना होता है तो जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन जरूरी है. समझ आया? ठीक है, ऑलराइट. जो हाइब्रिड वेराइटीज नहीं बनता, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था ना, टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट क्रॉस करवाया जाता है. सो दिस इज बेसिकली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड और द हॉर्टिकल्चर फील्ड वेयर दे आर यूज्ड मच. नेक्स्ट अप, व्हाट डज द नेक्स्ट वन से? promote fruit growth and are capable of inducing parthenocarpy. तो या तो फ्रूट फॉर्मेशन को करेगा या फिर पार्थेनोकार्पी करेगा. मतलब नॉर्मल प्लांट्स में वो क्या बढ़ावा देगा, आगे प्रमोट क्या करेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन. एंड व्हिचएवर हैज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इट विल प्रमोट दैट सिंपल. देन इट आल्सो डिलेस सेरेसेंस. तो वो आगे हमने पढ़ा हुआ है, आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. इट आल्सो हेल्प्स इन डिलेइंग सेरेसेंस. Okay, it's like those cosmetic creams that we get for ourselves so that the aging process is delayed. Simple. उसका भी काम यही है कि for a little while it will delay the aging process of the plant. Next we have is, read Tanvi. Horticulture. It has an extensive use in horticulture. What is that horticulture? Horticulture means cultivation of fruits and vegetables. ना ऐसा मत बोलना उसको तो एग्रीकल्चर बोलते हैं. नहीं, एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वेजिटेबल एंड फ्रूट, उसके कल्चरिंग को या उसके ग्रोइंग को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. ठीक है. दूसरा, ग्रेप्स एंड तुमको एप्पल्स का एग्जांपल दिया हुआ है. अर्लियर यू नो द ग्रेप्स यूज्ड टू कम एज वेरी मच राउंडेड. शायद तुमने देखा होगा. Nowadays जैसे मैं भी सोच रही हूँ और मुझे भी याद है, it is coming into elongated shape. Like how you get in the market, okay? So now people are preferring that elongated grains or elongated units because it's a little heavier, it has more of a pulp and it is sweeter compared to that rounder units. Okay? So that variety of the market is more consumable. और वो कैसे आया है? By the use of gibberellin. दूसरा, मतलब like plant में होता है ना, तो use कैसे? क्या? सीड को बोलो कुछ. सही. They will हाइब्रिडाइज करते हैं. इसलिए पहले वो नहीं होता. पहले नेचुरली जितना रहेगा उतना नहीं. अगर ज्यादा किया तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा ना. मतलब बेसिकली ये सब आर्टिफिशियल वैरायटी है ना. अरे सुन लो मेरी बात. जिब्रेलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इट्स एन हार्मोन. इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड. It can be also duplicated a little synthetically and then it is given to the plant. सुना हुआ है वो चिकन को एंटीबायोटिक्स देते हैं. चिकन को एंटीबायोटिक्स या that false hormones. Fruits, the example given to you is grape and apple. Even the apples come elongated and this desired shape of the fruits or the vegetables that we want, it is due to the application of gibberellin. Okay. Next we have is malting. There is malting process that happens in the brewing industries. Brewing industry का मतलब होता है alcoholic beverage industries, where the
fruits are taken and they are made into alcohol. Now when the sugars in the fruit are fermented to become alcohol, that is called as malting process, and it's called as malting, it's not called as malting. That malting process will be helped by the gibberellin that is present. तो वो fasten the process हो जाता है बस. कितना है gibberellin? Next up we come to cytokinin. Cytokinin. Do we have any other point that is left behind? No. Alright. We go to cytokinin again. As I said, cytokinin falls under this category, that is growth promoter. ठीक है? So वो भी growth promoter करता है या growth promote करता है rather. But by which method? It does not do cell elongation. It will do, or it will promote cell division. So if you now read the first sentence, it will all make sense to you. क्योंकि उसमें ऐसा लिखा होगा कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन सेल एलोंगेशन से ग्रोथ करते हैं और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है. फर्स्ट पॉइंट अभी पढ़ोगे मेरे सामने. आलिया गुड मुहूर्त के लिए वेट नहीं करना है. साइटोकाइनिन ना मन में पढ़ो बेटा. फर्स्ट पॉइंट फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कुछ ऐसा. ओके. They promote cell division even non-meristematic tissue. Focus. हाँ क्यों नहीं माइग्रेट होगा ना. All of these hormones that I have taught you so far, they are in liquid state. They mix up with the sap and they move into the plant through xylem. Okay. Because it is in liquid state, it mixes up with the water, the sap that's there, and it keeps on moving to all the places. ऐसे तो यूनिडायरेक्शनल से ऊपर ही जाएगा फिर. हाँ. ऐसे तो फिर वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ऊपर. हाँ. क्यों नहीं वो जाता ही रहेगा ना. नहीं वापस आना होगा तो. इसलिए वो it will stay wherever it is needed, it deposits and then it moves. Okay. Also, this is a little more recent क्योंकि अगर तुम उसका year देखोगे डिस्कवरी का तो it's written as 1950. Comparatively नया है ना थोड़ा सा क्योंकि ऑक्सीन याद है. ऑक्सीन और ये सब बहुत पुराना है. ठीक है. फाइटोहॉर्मोन that term was invented when it was discovered 1902. तो उससे तो काफी नया है and it was discovered by Spug and Miller. Also, where do you find cytokinin? Cytokinin is found moreover in germinating seeds and developing fruits and embryo. So if you know कि germinating seeds जो होते हैं उसमें growth बहुत होता है. इसीलिए उसको germinating seeds बोलते हैं क्योंकि growth उनको कहाँ दिख रहा है? Seed से वो plant बनता है. So it will definitely have this mechanism of cell division. This is activated by cytokinin. And I hope you remember. टिश्यू में भी होता है. परमानेंट टिश्यू में भी होगा क्योंकि परमानेंट टिश्यू के पास एक एबिलिटी होता है. दो इट इज परमानेंट, आई हैव बीन टेलिंग यू परमानेंट टिश्यू कैन नॉट डिवाइड फर्दर, बट एक टाइम आता है जब परमानेंट टिश्यू विल रीगेन द डिवीजन फॉर अ लिटिल व्हाइल, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. तुमको फिनोमेना नहीं है वो, सब नॉट गोइंग टू जज इट. पहले तो बता देते. सेकेंडरी ग्रोथ जाके घर पे पढ़ लेना. ओके. ऑलराइट. So germinating seeds में cell division होगा and this cell division is activated by cytokinin. If you remember, तुमको जब seed chapter सिखाया जा रहा था, दर्श are you here? Seed chapter सिखाया जा रहा था तो उसमें सबसे पहले लिखा था seed will absorb water, it swells up and the hormones are activated. वो सारे किस hormones की बात हो रही है? But क्योंकि वो 9th standard था तुमको ये सब बता दिया. Okay? We are done with the first point. The second point says that in seed, cytokinin will help the expansion of cotyledon. My dearies, cotyledon is there in the seed. Why is it there in the seed? Just right. हाँ? पगला ही है तू. तेरा तो क्या ख्याल कर रहा है? तन्वी? No, ma'am. Eventually, yes, but how? Ma'am, please. इतना टाइम से आगे जाएगा तुमने अच्छा आंसर ले दिया तो देख. Ma'am, it stores food for the embryo. It store. बेटा सब ऐसे. नहीं सच्ची सुनाई. So, cotyledon का सीधा फंक्शन क्या? तुम्हारा सीधा फंक्शन क्या है? यहाँ आके पढ़ना है तुम. मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है वो सब नहीं पूछा मैंने. अभी क्या फंक्शन है तुम्हारा ये पूछा. cotyledon का फंक्शन यही है. It stores food for the growing embryo. The embryo is into growing state. It just has to have enough food. तो अगर साइटोकाइनिन ग्रोथ बढ़ाता है, एक्सपेंशन करता है cotyledon का, मतलब ज्यादा फूड रह पाएगा. एंड डू यू रिमेम्बर डोरमेंसी स्टेट में रहता है सीड. Yes. तो जब वो डोरमेंट है तो उसको खाना कौन पहुंचाएगा? cotyledon. तो cotyledon अगर चुन्नू मुन्नू सा रहेगा तो कितना खाना स्टोर करेगा? समझ आया? That's the second point. The third one is
It helps in breaking seed dormancy and it will promote germination. You need to understand seed dormancy तो होता ही है, हर एक सीड में डॉर्मेंट पीरियड होता है। जैसे जिस दिन और जिस घंटे में वो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हुआ, सीड जर्मिनेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को करवाता कौन है? साइटोकाइन। नेक्स्ट अप वी हैव इज it promotes chlorophyll synthesis and delays leaf synthesis. The same is given to you. थोड़ा सा एडिशन कर दिया है, बोल के क्या? क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है। ज्यादा क्लोरोप्लास्ट करते हैं ना, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट बनेगा, ज्यादा क्लोरोफिल रहेगा, तो लीफ जैसा वैसा ही रहेगा। Lastly, it inhibits apical dominance. What do you understand by this? Help me with this. Come on. It stops. Huh? It stops or discourages What? लंबा होने में। cell like पत्ते गिरने। Well, I mean does not. It doesn't allow. चुप चुप। longitudinal length उसे achieve नहीं कर Oh, it does not. It हाँ। stops the growth of the Stop plant. करके। क्या स्टॉप करता है, क्या प्रमोट करता है? अरे अच्छे से वो बोलो। Apical ऊपर जाता है। इधर ही आंसर है, इसमें बोलो क्या स्टॉप करेगा और क्या ग्रोथ करेगा? Apical bud. स्टॉप करेगा और प्रमोट किसको करेगा? Lateral bud. Now just say this in English and it's so important for you to understand that it will suppress the growth of apical bud and it promotes the growth of lateral buds, hence cutting the apical dominance. और inhibiting. अपाइकल बड का डोमिनेंस खत्म कर देगा वो। इसीलिए प्लांट कैसे ग्रो होने लगता है? डायमीटर वाइज और गर्थ वाइज और ब्रांचेस वाइज। ठीक है? Alright, there is a little question that is there behind the chapter that talks about tea plantation। पता है तुमको टी प्लांटेशन? चाय का गार्डन नहीं देखा कभी वीडियोस में? So you might have seen those women having basket with them and they're constantly plucking something and putting it. वो क्या होता है? चाय तो के चाय का पत्ते। जो सैपलिंग होता है ना, पूरा प्लांट होता है, उसका जो अपाइकल बड है ना, अपाइकल बड, अपाइकल लीफ, वो लोग तोड़ते हैं और उसको जमा करते हैं। Why are they doing it now? Tell me. ग्रो नहीं होने देना। कैसे ग्रो नहीं होने देते? करेक्ट। longitudinal growth हाँ। उसको लॉन्जिट्यूडनली ग्रो नहीं करना, हमको उसको ग्रो करने देना, उसका ब्रांचेस आएगा, अच्छी बात है। I don't want it just to grow lengthwise. Otherwise टी का हार्वेस्टिंग कैसा होगा? समझ आया? That is on hilly regions. They don't want it to grow much. तो वो लोग क्या करते हैं? अपाइकल डोमिनेंस कट करते हैं। कैसे कट करेंगे? इसी को निकाल देते हैं, इतने पोर्शन को निकाल देते हैं। इसमें ऑक्सीजन भरा पड़ा रहेगा ना, ठीक है? तो ऑक्सीजन को निकालते हैं तो साइटोकाइन अपना